आई होप तुम आईपी मैट इंदौर और रोहतक एकदम फोड़ के आ गए हो। अब बस लास्ट एग्जाम बचा है, दैट इज जिप मैट। बट इज इट इवन वर्थ इट? मुझे पता है तुम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके होगे, तभी तुम वीडियो देख रहे हो, तुम 2000 भी भर चुके हो, बट इट्स स्टिल नेसेसरी टू कॉन्टेम्पलेट वेदर इज इट वर्थ गिविंग, worth working hard for it. A little background of JIPMAT. It is a joint exam to get admission into IIM Jammu and IIM Bodh Gaya. The exam consists of 3 sections that are quants, DILR and VARC. And the paper consists of 100 questions. For every correct answer, you get +4 and for every wrong answer, it is a -1. IIM Jammu gives 95% weightage to the JIPMAT score and the rest 5% is for gender diversity. On the other hand, IIM Bodh Gaya gives 100% weightage to just your JIPMAT score. Now let's delve into the most important thing about this video, that is paper analysis. हर बार यही होता है कि आईपी मैट इंदौर और रोहतक पे लोग इतना ज्यादा स्टक होते हैं that JIPMAT takes a back seat, but we won't do that. In 2023, 7 to 8 questions were asked on geometry as well as number system, which is a lot. So clearly इन दो टॉपिक्स पे तो फोकस करना ही है, especially geometry, because हर साल consistently JIPMAT में 6 to 7 questions तो आ ही रहे हैं. Next, you must practice questions of simple equations or algebra and probability. थोड़ा सा trigonometry, stats, SI and CI, इनके एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं यार वो लोग. अच्छा, remember one thing, if I am saying that focus on this, focus on that, it means कि इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ना ही कि तुम बस यही टॉपिक्स करके जाओ. अब पता है JIPMAT में कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस? The style is a little different. स्टेटमेंट के फॉर्म में, मतलब बताओ कि क्या दोनों स्टेटमेंट जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब तुम्हें एक्चुअली सॉल्व करके या थोड़ा सा अटेम्प्ट मार के देखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत भी है या नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से भी सॉल्व ना हो और तुम्हें इंफॉर्मेशन कम पड़ जाए. ऐसे क्वेश्चंस हल्के से टाइम टेकिंग होते हैं और ये पैटर्न 2022 में भी फॉलो किया गया था. इसलिए अपनी स्पीड पे फोकस रखना so that you don't end up wasting time in these questions. Let's move on to DILR now. One thing I remember very significantly from my last year's experience of giving JIPMAT is that there were so many questions of number series puzzles, and turns out they love doing that. पिछले 2 साल से they've been asking 4 to 5 questions from this topic consistently. Another such topic is coding decoding. Again, straight 4-5 questions were asked. There were many questions from clocks and calendars, data arrangement, spatial reasoning, and how can we forget DI sets. एक फनी चीज बताऊं लास्ट ईयर के पेपर के बारे में, हमारे में ना एक DI सेट ही गलत था, तो जिन जिन लोगों ने वो अटेम्प्ट किया था उनको ग्रेस मार्क्स मिले, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 मार्क्स. बट जिन्होंने नहीं किया था उन्हें कुछ नहीं मिला. सो इट वाज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ओवर देयर. एनीवेज, दिस इज अ वेरी रेयर अकरेंस, तो पेपर देते हुए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो ये सोच के मत छोड़ देना कि क्वेश्चन ही गलत है, ट्राई करते रहना उस पे. ओके, अब VA की भी बात करते हैं. Now you will be shocked to hear that last year we got 14 vocab related questions, which includes idioms, phrases, phrasal verbs and everything else. There were around 5 to 8 questions of sentence corrections and basic grammar and few questions on direct and indirect speech. बाकी ये टॉपिक्स भी थॉरली प्रिपेयर करके जाना. I mean, I understand IP मैट इंदौर और रोहतक के पेपर देने के बाद इतनी होल्ड होती है कॉन्सेप्ट्स पे, बट प्लीज डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड रिवाइज बिफोर द पेपर. जाने से पहले एक बार कट ऑफ्स भी देख ही लेते हैं लास्ट ईयर की, मतलब पता तो चले क्या सीन था यार पिछले 2 साल से. अब जम्मू के साथ क्या चक्कर है, उसकी मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग निकलती है, बिकॉज दे गिव अ सर्टेन वेटेज टू योर जेंडर डाइवर्सिटी एज वेल, एंड आई नो इट्स फनी टू से द लीस्ट. For male general, it was 333, EWS 310, NC/OBC 269, SC 290, ST was 145, and PWD was 173. Similarly, female male general was 311, EWS 285, NC/OBC 248, SC 199, ST 144, and PWD was 146. फीमेल्स की हर कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम जाती है यार.
Let's see for IIM Bodh Gaya now. General 342, EWS 323, NCOBC 303, SC 258, ST 205 and PWD 199. This is out of 400. अच्छा, ये सारे फिगर्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए हैं और बाद में जैसे जैसे एडमिशन हुआ है वो वेट लिस्ट नंबर पे डिपेंड करता है. बट वन थिंग आई वांट टू से टू यू ऑल इज दीज आर ऑल जस्ट नंबर्स. व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज टू गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट. रिग्रेट ना हो यार बिल्कुल भी. जब मैं अपना इंदौर का पेपर देकर निकली थी बाहर तब मुझे पता था कि मेरे मार्क्स बहुत बॉर्डर लाइन पे हैं और मुझे ये भी पता था कि कौन से सेक्शन के कौन से क्वेश्चन में मेरे नंबर कट रहे हैं. एंड व्हेन द रिजल्ट केम आई वाज करेक्ट. बट पता है मुझे उस चीज़ का कभी रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि आई हैड गिवन एवरीथिंग आई हैड इन मी टू स्कोर हाउ मच आई स्कोर्ड. बट नाउ आई कांट इमेजिन बीइंग एनीवेयर एल्स अदर देन IIM Ranchi. So trust me, things have a way of coming around if and only if you are true to it. So all the very best. Jaw for out.